چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا پیارے بچوں، آپ نے درود پاک پڑھنے کی کتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے باری باری نام پوچھوں گا اور آپ سب مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حسان رضا۔ محمد حسان رضا آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حنظلہ اٹاری۔ محمد حنظلہ اتاری ان کا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا۔ اور آپ کا نام؟ محمد بلال رضا۔ محمد بلال رضا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے سورہ فلق مکمل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ناس کی ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم سورہ ناس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سورہ ناس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 1 رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ 6۔ آیتیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس سورت کو سورہ ناس کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناس کہتے ہیں انسانوں کو۔ کن کو کہتے ہیں؟ انسانوں کو۔ اور اس سورت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیت۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ اس قاف پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں،
इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। और इस कॉफ के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। और इस कॉफ के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? जबर। जबर, जबर। जेर, जेर। पेश। पेश। जबर, जेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। क्या कहते हैं? हरकत। और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हर्फ को हमें पढ़ना किस तरह है, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे कॉफ जबर क, कॉफ जबर क, कॉफ जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ जेर की, कॉफ पेश कु। कॉफ पेश कु। अब प्यारे बच्चों, कॉफ उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है। एक हर्फ है कॉफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम कॉफ की अदायगी करेंगे तो आपको ये याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कॉफ हुरूफ मुस्तारिया में से है, यानी उन हुरूफ में से है जिनको मोटा पढ़ना जरूरी है। तो कॉफ की अदायगी करते वक्त इसे हम मोटा पढ़ेंगे और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे कॉफ, 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 और इसे पढ़ेंगे काफ, काफ, काफ। काफ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। अब इस लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उस हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। अब साकिन हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी कॉफ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। इस हमजा पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? जबर। जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम हमजा को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कहा हमजा। ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती तो उसे हम अलिफ ही कहते हैं, लेकिन जब इस पर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो ये अलिफ नहीं रहता बल्कि इसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। हमजा कहते हैं। अब हमजा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा जबर आ, हमजा जबर आ। प्यारे बच्चों इसमें झटका नहीं देंगे। ठीक है, जब हरकत हो किसी हर्फ पर तो उसे झटके के बगैर पढ़ते हैं। यानी हमजा जबर आ, हमजा जबर आ। और इसे पढ़ेंगे आइन जबर आ, आइन जबर आ। तो प्यारे बच्चों फर्क समझ में आया आपको? जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। क्या है? आइन। इस आइन पर कौन सी हरकत देख रहे हैं? पेश। पेश। फिर इसके बाद आ रहा है वाव साकिन। क्या आ रहा है? वाव साकिन। अब वाव हुरूफे मद्दा में से है। किन में से है? उर्फे मद्दा। हुरूफे मद्दा में से। अब ये हुरूफे मद्दा क्या है? तो हुरूफे मद्दा तीन हैं। कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। अलिफ, 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 वाव, 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 या, या, या। या। तो इन तीनों हुरूफ को हम हुरूफ मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्फे मद्दा। हुरूफ मद्दा कहते हैं। अब हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब? तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले अगर जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा।
और वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा, क्या होगा? वाव मद्दा। और या साकिन से पहले अगर जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा, क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा। या मद्दा। या मद्दा। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर, यानी आइन अलिफ जबर आ, आइन अलिफ जबर आ। आइन वाव पेश उ, आइन वाव पेश उ। आइन या जेर ई। आइन या जेर ई। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? दाल। अब दाल भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है जा और तीसरा हर्फ है ज़ौम। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, और जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, और जब हम ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इसमें भी दाल की तरह सीटी की आवाज नहीं आएगी, लेकिन इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हुरूफ में से है जिनको हर हालत में पुर पढ़ते हैं। यानी इसे पढ़ेंगे दाल 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 दाल। और इसे पढ़ेंगे जा 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 जा। और इसे पढ़ेंगे ज़ौ दो ज़ौ। दो। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ दाल पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? पेश। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम दाल को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। क्या है? बा। इस बा के नीचे कौन सी हरकत है? जे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। इस पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर या जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम बा और रा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। इस बा पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तजदीद। क्या कहते हैं? तजदीद। क्या कहते हैं? तजदीद। और जिस हर्फ पर तजदीद हो उसे कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बा पर तजदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी रा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। इस नून पर कौन सी शक्ल है? तजदीद। और तजदीद वाले हर्फ के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया कि ऐसे हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा उसकी खुद की हरकत के मुताबिक। तो यहाँ पर भी हम नून को एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी बा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर नून मुशद्दद है और जहां भी नून पर तशदीद हो तो उसे हम गुन्ना के साथ पढ़ते हैं यानी नाक में आवाज ले जाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी नून की अदायगी करते वक्त हम नाक में आवाज ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन। क्या है? सीन। अब सीन भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है सौद और तीसरा हर्फ है सा। जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी और जब हम सौद की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज भी आएगी और इसे मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि सौद हुरूफ मुस्तारिया में से है। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे पढ़ेंगे सीन जबर सा, सीन जबर सा, सौद जबर सौ, सौद जबर सौ, और इसे पढ़ेंगे सा जबर सा। ता जबर सा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी।
अब यहाँ सीन के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम सीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो आप गोल दायरे का निशान देख रहे हैं, ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज का निशान है? आयत का मुकम्मल होने का। आयत के मुकम्मल होने का। और जहां भी ये निशान हो और इससे पहले वाले हर्फ पर जबर, जेर या पेश हो तो उसे हम साकिन कर देते हैं, तो यहाँ भी हम सीन को साकिन कर देंगे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी इस आयत के कवानीन कवायद मुकम्मल हुए। अब आइए हम इस आयत की मिलकर हिज्जे करते हैं, ठीक है जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए। कॉफ लाम पेश कुल, कॉफ लाम पेश कुल, हमजा जबर आ, हमजा ज़बर आ, ऐन वाव पेश ऊ, ऐन वाव पेश ऊ, अऊ, आऊ, दाल पेश दू, दाल पेश दू, अऊदु, आऊदु, कुल अऊदु, कुल आऊदु, बा जेर बी, बा ज़ेर बी, रा बा जबर रब, रा बा ज़बर रब, बिरब, बिरब, बा नून जेर बिन, बा नून ज़ेर बिन, बिरब्बिन, बिरब्बिन, कुल अऊदु बिरब्बिन, कुल आऊदु बिरब्बिन, नून अलिफ जबर ना, नून अलिफ ज़बर ना, सीन जेर सी, सीन ज़ेर सी, नासी, नासी, आगे वक्फ, आगे वफ, नास, नास, कुल अऊदु बिरब्बिन नास। कुल आऊदु बिरब्बिन नास। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारी इस आयत की हिज्जे भी मुकम्मल हुई। अब आइए हम इस आयत को मिलकर दोहराते हैं, ठीक है जी। पढ़िए, कुल अऊदु बिरब्बिन नास, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कुल अऊदु बिरब्बिन नास, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कुल अऊदु बिरब्बिन नास। कुल आऊदु बिरब्बिन नास। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आयत समझ में आ गई? जी। मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमजा बुरहान है और मैं आपको अपने सेगमेंट जिक्र नेमत में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हेल्दी फ्रूट्स में शामिल लीची के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताएंगे। जी हाँ बच्चों, लीची मौसम गर्मा का स्पेशल फ्रूट है। ये फ्रूट सूप बेरी फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस फैमिली को सेपेंडेसाई भी कहा जाता है। इसमें डिफरेंट फ्रूट्स के तकरीबन 1000 से ज्यादा स्पेशीज मौजूद हैं। लीची ट्री में एक शॉर्ट ट्रंक तना इसे कवर करके रखता है और इसकी ब्राउनिश रेड कलर की ब्रांचेस होती हैं। लीची ट्री एवरग्रीन शाइनी ग्रीन लीव्स तैयार करता है जो 2 या 4 लीव्स के पेयर में होते हैं। ये ट्री एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्लावर्स तैयार करता है जो एक दूसरे के पेयर होते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब होती है। ये फ्लावर्स लॉन्ग टर्मिनल क्लस्टर्स में जमा होते हैं और ये ग्रीन, येलो या वाइट कलर के हो सकते हैं। बच्चों, इन फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है जो डिफरेंट फ्लावर्स का फ्रेश जूस स्टोर करने वाली बीज को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती हैं। लीची फ्रूट राउंड और ओवल शेप, साइज में स्मॉल और रेड कलर का शेल रखता है। बच्चों, लीची फ्रूट के शेल पर रफ स्किन है जो पिंक या रेडिश कलर की हो सकती है। इसकी आउटर स्किन पॉइंटेड होती है जबकि इस फ्रूट की इंटरनल स्किन वाइट होती है। इसके अलावा हर लीची फ्रूट अपने अंदर बड़ा, चमकदार और ब्राउन कलर का सीड रखता है। ये फ्रूट सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया के सब रीजन में मौजूद चाइना में काश्त किया गया और इस वक्त जो कंट्रीज इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं उनमें चाइना, ताइवान, थाईलैंड, मडगास्कर, साउथ अफ्रीका
ماریشیس، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں۔ لیچی ڈائٹری فائبرز حاصل کرنے کا ایک بڑا اور بہترین سورس ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن سی، B1، B3، B9 منرلز جیسے کہ کاپر، پوٹیشیم، کیلشیم، میگنیشیم بھی موجود ہوتے ہیں۔ لیچی فروٹ میں فریش واٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے جو ہماری باڈی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نیچرلی فاسفورس اور ریبوفلاون بھی موجود ہوتا ہے۔ اس میں موجود فائبر ہماری باڈی کے اوور ویٹ کو ختم کرتا ہے، کیلوریز کی کوانٹٹی کو کم کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی باڈی ویٹ کو لیول رکھ سکتے ہیں۔ یہ فروٹ ہماری بونز کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں کیلشیم ہونے کی وجہ سے ہماری بونز اسٹرانگ رہتی ہے۔ لیچی فروٹ میں موجود وٹامن سی ہماری اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ ہماری اسکن کو الٹرا وائلیٹ ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اسکن کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ اس فروٹ میں اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہم ڈپریشن اور اسٹریس سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ فروٹ ہمارے برین اور ہارٹ کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اس کو کھانے سے ہمارا برین اور ہارٹ ویک نہیں ہوتے۔ لیچی فروٹ ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط بناتا ہے جس سے ہم ڈفرینٹ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ فروٹ ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن کو پراپر رکھتا ہے اور اس میں بننے والے بلڈ کلوٹس کو بھی ختم کرتا ہے۔ پیارے بچوں، لیچی فروٹ سے بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشس ڈشز بھی تیار کر کے کھائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ مزیدار آئس کریمز، فریش جوسز، سویٹ ڈشز، مارملیٹس، جیم، جیلی، کیکس، کسٹرڈ اور فروٹ سیلیڈز بھی اس سے تیار کی جاتی ہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا کہ اس لیچی فروٹ کے کتنے ہیلدی بینیفٹس ہیں، لہٰذا آپ سب نے اس کو یوز کرنا ہے اور ہیلدی رہنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر نعمت کمپلیٹ ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا